Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So in today's session, I will be discussing some PYQs on dual nature of matter. Obviously, a very easy chapter from physics. So like questions from this chapter are damn easy, and only two to three types of questions come from this chapter, like on photoelectric effect, on the dual nature of matter, on de Broglie wavelength, and so on. So let's start with the very first question. So it is saying, one second. The de Broglie wavelength associated with an electron accelerated by a potential difference of 81 volt is given by how much? So de Broglie wavelength क्या होती है? De Broglie wavelength is represented by lambda equal to h upon p. Okay, where p is nothing but momentum. So इसको मैं h upon mv भी लिख सकता हूँ. This thing is equal to h upon mv. And I know this formula, half mv square is equal to kinetic energy. So from here I can substitute for V and I will get H upon root 2 mk. Okay. So these all are my formulas for de Broglie wavelength where K is my kinetic energy. Now one thing more I know is K is equal to EV, that is when K is equal to QV actually. That is when a charged particle is accelerated through a potential difference of V volts, then kinetic energy of that particle is given by QV, where Q is the charge of the particle and V is the voltage through which it is accelerated. Okay. So in this case, I will put K equal to QV in this formula. I will get H upon root of 2m QV. Okay. And for electron, here Q is equal to E, which is 1.6 into 10 power minus 19. M is 9.1 into 10 power minus 31 for electron. Putting all those values, I will, and I know the value of H also. H is my Planck's constant, 6.6 into 10 power minus 34. I know the value of M also, I know the value of Q also, and 2 is a constant. So जब मैं इसको solve करता हूँ तब मेरे को मिलता है 12.27. So इसी को जब मैं constants की value डाल के लिखता हूँ तब इससे जो मेरा फाइनल आंसर आता है कि लैम्डा, that is de Broglie wavelength for electron, is given by 12.27 divided by root V. And one more thing, please remember this thing, that this formula is for angstrom, not for meters. So from here you will get your answer in angstrom. If you have been asking meters, so you have to convert it further. Okay. So let's see here. V is given to us as 81. So my answer would be root of 12.27 upon not root here, sorry, root denominator में आएगा 12.27 divided by root of 81. Root of 81. So my answer would be 12.27 divided by 9. 12.27 divided by 9. Okay, so it would be 1.36 angstrom. And as I told you that if you want to give an answer in any other unit, then you can convert it. And 1 nanometer is 10 angstrom. So to convert it in nanometer, I have to divide it by 10. On dividing it by 10, I will get 0.136 nanometers as my final answer. Okay. So this is my final answer for this question. बस ये वाला concept याद रखना कि जो मेरी de Broglie wavelength होती है उसका जो basic formula है, that is h upon p, where h is my Planck's constant and p is my linear momentum. Then I put p equal to mv, then root 2 mk, and then from further calculations I got this formula.
सो आपको कभी भी डी ब्रॉगली इक्विवेलेंट पूछी जाए तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला काम आ सकता है. सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ देम. And this formula is only for electron. 12.27 comes only for electron. So इसको आप किसी में भी मत लगा देना कि they are saying if de Broglie wavelength associated with a proton accelerated by a potential difference of 81 volt is given by, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि just only for electron. ठीक है. So this is special formula only for electron. प्रोटॉन के लिए भी आप निकाल सकते हो, लेकिन प्रोटॉन का मास डिफरेंट होगा तो वहां से अलग कांस्टेंट आएगा न्यूमरेटर में. ओके. लेट्स मूव अहेड. The minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of v volts is given by is proportional to how much? Okay, तो ये क्वेश्चन X-rays पे. X-rays is also a different chapter in modern physics. इसमें क्या होता है ना, इसमें जो मेरी लैम्डा होती है that is given by hc upon ev, where again h is my Planck's constant, c is my speed of light, e is electronic charge and v is the potential difference through which it is accelerated. यहाँ पे potential difference v volts दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जो मेरा लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v. तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बस ये पता होना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन ev फॉर x rays. वहां से आप सीधे से निकाल सकते हो कि 1/v इज द फाइनल आंसर. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी चैप्टर. मूविंग अहेड. The light rays having photons of energy 4.2 electron volt are falling on a metal surface having a work function of 2.2 electron volts. The stopping potential of the surface is how much? ओके, तो इसमें मेरे को एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. तो ये कैसे होगा, इसमें मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थोड़ी सी थोड़ी समझा देता हूँ. इसमें क्या होता है, एक मेटल सरफेस होता है, इस पे रेस आके गिरती है. रेस इन द सेंस फोटॉन्स आके गिरते हैं. इनमें एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू, कुछ भी बोल लो. यहाँ से फोटॉन्स आ रहे होते हैं, फोटॉन्स इस पे स्ट्राइक करते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं. ठीक है. They bump out electrons from this metal surface whenever a photon beam is put on it. So basically क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल के अंदर ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस रहता है. तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स आता है. तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए पहले तो मेरे को अगर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो मेरे को दो फोर्स चाहिए. एक फोर्स जो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स को हटा दे, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो एक बेसिक कम से कम वो जो मेरे को फोटोन से फोर्स मिल रहा है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम कर ले. अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर लेगा तभी आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल. काइनेटिक एनर्जी उनको मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है. इफ the if they overcome the force of attraction, then the left energy will be consumed as the kinetic energy of electron. ठीक है. तो जो एनर्जी यूज होती है अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने में या फिर और भी जो फोर्सेस है जिससे वो मेटल से बाहर निकल सके, उस बेसिक एनर्जी मिनिमम एनर्जी को मैं बोलता हूँ वर्क फंक्शन, दैट इज यूज टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस. उस वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी बचती है उसको मैं यूज करता हूँ एज माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है वर्क फंक्शन का जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फाई से. एंड फाई इज गिवन बाय एच न्यू नॉट, वेयर माई न्यू नॉट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या बोलता हूँ मैं इसको, इसको मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी विच इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि मेरे को मिनिमम एनर्जी उतनी मिल सके जिससे कि मेरा इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम हो जाए. तो इसको मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके. और इसको एक तरीके से और लिखता हूँ मैं, एच सी upon lambda naught, and this lambda naught is maximum, the maximum wavelength for electron to
come out of the metal surface is known as this threshold wavelength. Why? Because nu is minimum. अगर nu को minimum होना है तो फिर डिनोमिनेटर को maximum होना पड़ेगा. तो ये हमेशा ध्यान रखना कि for work function lambda naught is maximum and nu naught is minimum. तो इसको मैं बोलता हूँ threshold wavelength. जो बेसिक थ्रेशोल्ड को ओवरकम कर देना इसलिए इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं. ठीक है. तो अब वही चीज है कि जो मेरे को एनर्जी मिल रही है फोटॉन से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एच न्यू से, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग फोटॉन्स. दिस थिंग इज यूज्ड इन टू वेज. फर्स्ट टू ओवरकम द वर्क फंक्शन, प्लस द रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माय इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एच न्यू नॉट से. एच न्यू नॉट. और काइनेटिक एनर्जी मेरे को पता ही है कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, बाय हाफ एम वी स्क्वायर, where m is the mass of electrons and v is the velocity of electrons. Half mv square. Okay. तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. They are saying the light rays having photons of energy 4.2 electron volt. मतलब मेरे को h nu दिया हुआ है 4.2 electron volt. h nu is given to me as, और इसमें जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो उसको भी ध्यान रखना. 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट are falling on a metal surface having a work function of 2.2 electron volt. तो मेरे को वर्क फंक्शन में दिया हुआ है मेटल का, एंड दिस वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द मेटल. ये हर मेटल के लिए अलग अलग होता है. 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सरफेस. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट भी देख लो. जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ना, उसने सारे फोर्स को ओवरकम कर लिया, फिर भी जो एनर्जी बच रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है. तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मैं लिखता हूँ इक्वल टू ई टाइम्स सम वी नॉट. दिस वी नॉट इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब मान लो इस वाली प्लेट, ये मेरी मेटल प्लेट है, इस पर मैं फोटॉन्स आ रहे हैं और इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं. तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक प्लेट लगाता हूँ विद अ नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने से रिपेल करती है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर. तो इतना उसमें कितना पोटेंशियल होना चाहिए इस नेगेटिव प्लेट का कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे. तो ऑब्वियस सी बात है वो काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू ई वी नॉट. क्योंकि ये मैं पढ़ता हूँ कि द when a charge is accelerated through a potential of through a potential of v naught, then the kinetic energy of that charged particle is given by e v naught. तो उस काइनेटिक एनर्जी को मैं ई वी नॉट से इक्वेट कर रहा हूँ. वी नॉट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसको रोक सके बेसिकली. तो यहाँ से उतना पोटेंशियल में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाए. उसको मैं बोलता हूँ ई वी नॉट. तो ऑब्वियस सी बात है ये ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, विच इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके. तो ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट. तो मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है, तो मेरे को पता है मैं वही लिखूंगा एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी. कितनी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ से आ जाएगा एच न्यू माइनस 5 विच इज 4.2 माइनस 2.2 विच इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, and this maximum kinetic energy is equal to E V naught, where E is the charge of electron and V naught is the stopping potential. यहाँ से E and E cancel हो जाएगा and I will get my stopping potential V naught equal to 2 volt. ठीक है. So 2 volt इसका मेरा आंसर हो गया. I hope you got it. इस वाले क्वेश्चन से मैंने आपको फोटो इफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि पहले फोटॉन्स आते हैं, वो उसमें दो टाइप की एनर्जी होती है. फर्स्ट टू ओवरकम द वर्क फंक्शन, एंड जो रेस्ट एनर्जी है दैट विल बी कंज्यूम्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माय इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क फंक्शन के लिए दो टर्म्स और होते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेयर इट इज गिवन बाय h nu naught या h upon lambda naught. उसके बाद जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए
मैं एक स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, उसको मैं बोलता हूँ ई वी नॉट, एंड फिर मैं दोनों को इक्वेट करके स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो दिस वाज माय कॉन्सेप्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे चलते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज गिवन बाय वी नॉट, मतलब एक फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल की मेरे को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है वी नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वही जिससे मेरा वर्क फंक्शन ओवरकम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है दैट माय वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ओके, देन इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 V0 इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल, मतलब जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 V0 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इनकमिंग फोटॉन्स की एनर्जी है एच न्यू नॉट, दैट इज गिवन बाय एच इंटू 4 V0। ठीक है, दैट इज 4 H V0। देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो वही सेम क्वेश्चन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय के ई मैक्स इज इक्वल टू, सॉरी, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज 4 H V0 माइनस, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ई वी नॉट नहीं एच वी नॉट होगा। मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे गलती से, मतलब मैंने वोल्टेज ले लिया वी नॉट को, वी नॉट इज द फ्रीक्वेंसी, वो मैंने गलती कर दी वहाँ पे। यहाँ पे एच वी नॉट होगा क्योंकि एनर्जी इज गिवन बाय एच इंटू फ्रीक्वेंसी, तो एच इंटू वी नॉट, तो 4 H V0 माइनस एच वी नॉट। सो माई आंसर वुड बी फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 3 H V0। ठीक है, 3 H V0, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई इलेक्ट्रॉन्स। ये वर्क फंक्शन है एच वी नॉट, और जो मेरे को काइनेटिक जो मेरे को एनर्जी दी थी इंसिडेंट फोटोन की, दैट इज 4 H V0। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो वहां से मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल गया 3 H V0। ओके, आगे चलते हैं। When two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric material, the stopping potential becomes Vs by 2 and Vs। अच्छा, मतलब मेरे को दो कंडीशंस दी है, उन दो कंडीशन से मेरे को वर्क फंक्शन बताना है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज वर्क फंक्शन ओनली। तो ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा। मैं पहले तो फॉर्मूला लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज गिवन बाय एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, मेरे को दिया हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मैं वही लिखता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी कैसे कंपेयर करता हूँ, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज वी एस बाई टू, ई वी एस बाई टू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दी है न्यू, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जो मुझे निकालना है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है ई वी एस इज इक्वल टू, इस केस में जो मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू बाई टू, तो एच न्यू बाई टू
माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि ये तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं कितनी भी एनर्जी की इंसिडेंट लाइट डाल दूं या कितना भी उसका वर्क फंक्शन है, कितना भी उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाए, वर्क फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक मटेरियल के लिए सेम रहती है हमेशा, बट फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, तो मेरे को एच न्यू नॉट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूं? मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। दोनों को ऐड करने से क्या होगा, मेरे को टू एच न्यू नॉट मिल जाएगा, वहां से मेरे को न्यू नॉट मिल जाएगा, तो दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ईवीएस बाई टू प्लस ईवीएस इज 3 टाइम्स ईवीएस बाई टू इज इक्वल टू 3 h न्यू बाई टू माइनस 2 h न्यू नॉट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ से न्यू नॉट निकालना है ना, तो मैं न्यू नॉट निकाल लेता हूँ। फर्स्टली लेट मी मेक इट बाई टू, एंड इसको मैं 4 में आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल बी गेटिंग 3 EVS माइनस 3 टाइम्स H न्यू, बिकॉज मेरे को यहाँ पे न्यू दिया हुआ था ना, अपॉन 4 h, बट यहाँ पे नेगेटिव का आएगा बेसिकली, तो ये आ रहा है न्यू नॉट मेरा। ओके, बट मेरे को यहाँ से VS एलिमिनेट करना है। हाँ, तो मैं VS को एलिमिनेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 3 टाइम्स EVS इज इक्वल टू 3 h न्यू बाई टू माइनस 3 h V नॉट। उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, 3 EVS में ये डालूंगा मैं, तो 3 HV बाई टू माइनस 3 HV हो जाएगा कितना, 3 HV बाई टू माइनस 3 HV इज माइनस 3 HV बाई टू माइनस 3 HV नॉट, बेसिकली प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस 3 HV नॉट डिवाइड बाई 4 h, 4 h को मुझे ले जाऊंगा तो आई विल गेट 4 HV नॉट। ठीक है, तो मेरे को मिल रहा है 4 HV नॉट इज इक्वल टू 3 HV बाई टू, 3 HV बाई टू प्लस 3 HV नॉट। तो उसको मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट HV नॉट इज इक्वल टू 3 HV बाई टू, यहाँ से H एंड H कैंसिल हो जाएगा, एंड माई फाइनल आंसर इज V नॉट इज इक्वल टू 3V बाई टू। ठीक है, ये आंसर मुझको यहाँ से भी मिल रहा है, चाहे आप किसी भी मेथड से करो, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो करना था, सारी इक्वेशंस लगानी थी, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो अगेन इट वाज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज
emitted by a source of monochromatic light of wavelength 600 nanometers when it delivers the power of 3.3 into 10 power minus 3 watt. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसमें निकालते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। मेरे को दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने हैं, तो मेरे को ये तो पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है पावर का एच सी बाय लैम्डा, बट ये होता है एक फोटोन के लिए, मेरे को एन फोटॉन्स अगर होंगे तो एन एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसमें निकालना क्या है, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो मेरे को एन निकालना है। एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा पी इंटू लैम्डा डिवाइड बाई एच सी। ओके, सिंपल थिंग। देन यहाँ पे मेरे को पावर कितना दिया हुआ है, 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 into lambda is how much? Lambda is 600 nanometers. So it would be 600 into 10 power minus 9 divided by h, which is 6.6 into 10 power minus 34. 6.6 into 10 power minus 34. यहाँ पे कुछ वजह सोच रहे होंगे कि यहाँ पे E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को एवरेज बोला है। एवरेज के लिए मैं E को E के बराबर लेट कर सकता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे टाइम दिया था तो मैं टाइम को भी लेता यहाँ पे, बट क्योंकि मेरे को दिया हुआ नहीं है इसलिए मैं इसको सीधे ऐसे लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, इंटू my c, which is 3 into 10 power 8, because c is nothing but the speed of light. So 3 into 10 power 8. अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, चाहे मैं कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2, देन 2 into 3 is 6, फिर यहाँ से मिल जाएगा आपको 100। अब बस 10 की पावर ही बची है, सो आपको 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 12, सो ऊपर आ जाएगा 10 पावर माइनस 10 अपॉन 10 power minus 34 into 10 power 8. So it would be 10 power minus 26. ओके, सो यहाँ से कितना मिल जाएगा अपने को, 10 पावर 16 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिटेड जब मेरे को इतनी पावर मिल रही है, कितनी, 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 वॉट्स। वॉट इज इटसेल्फ जूल पर सेकेंड, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन। अगेन प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि डुअल नेचर ऑफ मैटर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल वाले। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास m दिया हुआ विद इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट आई कैप। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, वे v नॉट इज ग्रेटर देन 0। enters an electric field e vector equal to minus e नॉट आई कैप, मतलब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, जिसका मैग्नीट्यूड e नॉट है at t equal to 0. If lambda naught is the de Broglie wavelength initially इसकी de Broglie wavelength lambda naught दी हुई है, then de Broglie wavelength at time t is what? तो de Broglie wavelength चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे को पता है de Broglie wavelength is given by h upon mv, और मेरे को पता है अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ऑब्वियसली बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डायरेक्ट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर डायरेक्ट होगा। तो मेरे को ये चीज पता है कि जो मेरा वेलोसिटी है वो चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मेरी de Broglie wavelength चेंज होगी। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और मेरे को ये चीज पता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे जाना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक्सेलरेट कर देगी। तो बेसिकली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मोशन अभी इस तरफ है। ठीक है, तो ये उसको डायरेक्ट कर देगी कि वो उससे और दूर जाए। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से इस तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी बेसिकली। अगर प्रोटॉन होता तो फिर वो उसकी वेलोसिटी कम होती। वाई सो, बिकॉज प्रोटॉन मूव्स टू विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज
वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्ट होता है बेसिकली। ठीक है, इस चक्कर में इसकी लैम्डा चेंज होगी, डी ब्रॉगली इक्वेशन चेंज होगी। तो आई होप क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं अब। मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दी गई वी नॉट आई कैप, ऑब्वियसली इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन प्लस एक्स डायरेक्शन। वाई सो? क्योंकि मेरे को बोला गया है कि जो मेरी वी नॉट है वो पॉजिटिव है। अगर वी नॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दी है माइनस ई नॉट आई कैप, विच implies इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बिकॉज ई नॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, अब इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपॉन एम वी नॉट हो जाएगी। वाई सो? बिकॉज मेरे को इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी गई है, और मेरे को पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय एच अपॉन पी, विच इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब मेरे को पता है जो मेरा फोर्स वेक्टर होता है, दैट इज क्यू ई। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ई क्यू है माइनस ई के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाय माइनस ई नॉट आई कैप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इज Recording in इक्वल टू progress. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन। और मेरे को क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है? एम दिया हुआ है ना, एम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक्सीलरेशन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन पे कितना, ई इंटू ई नॉट डिवाइड बाई एम, ऑब्वियसली इन प्लस एक्स डायरेक्शन ओनली, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और मेरे को क्या पूछा है? मेरे को पूछे डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी। तो टाइम टी के बाद मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग माय लॉज ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस ई टी, where v is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is the time period। फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है v, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दी है v नॉट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, प्लस e इंटू ई नॉट बाई एम इंटू टी। ओके, तो यहाँ से मेरे को v मिल गया फाइनल टाइम t के बाद। तो मेरे को लैम्डा मिल गया, बेसिकली लैम्डा कितना हो गया? लैम्डा हो गया h अपॉन m फाइनल v। ये हो जाएगा h अपॉन m इंटू वी नॉट प्लस ई इंटू ई नॉट बाई एम इंटू टी। अब इसको चाहे सिंप्लीफाई कर लो फर्दर। ठीक है, ये क्या होगा ना, हाँ, ई इंटू ई नॉट अपॉन एम नॉट इंटू टी। ठीक है, अब इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन फॉर्म ऑफ ओरिजिनल लैम्डा नॉट जो टी इक्वल टू जीरो थी। तो मैं भी वही चीज कर देता हूँ यहाँ पे। वन सेकेंड, लेट मी मेक स्पेस। तो मेरे को पता है मेरा ओरिजिनल लैम्डा नॉट कितना था। मेरा ओरिजिनल लैम्डा नॉट था एच अपॉन एम वी नॉट। ये कब था? ये था एट टी इक्वल टू जीरो। एट टी इक्वल टू जीरो पे ये था ना, जो इनिशियल में को वेलोसिटी दी गई थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी नॉट में कॉमन ले लूंगा क्योंकि मेरे को लैम्डा नॉट बनाना है। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस
इसको मैं लिख दूंगा ई नॉट अपॉन एम वी नॉट, डिवाइड हो जाएगा वो, क्योंकि मैंने वी नॉट कॉमन लिया इसलिए। तो हो जाएगा ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी। ठीक है, अब सिंपल है। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा नॉट से, मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई इंटू ई नॉट अपॉन एम वी नॉट टी, ये मेरा फाइनल आंसर है फॉर माई डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी। ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर, लैम्डा एट टाइम टी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज हो रही होगी, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज क्यों हो रही थी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज इसलिए हो रही थी क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक्सेलरेशन लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मेरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज होगी। यही अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में बस एक एडिशनल फोर्स और आ जाता उसमें, उस केस में जो मेरे पास प्रोटॉन है उस पर फोर्स लगता अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी कम होती बेसिकली। तो मेरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस केस में बढ़ती, क्योंकि वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है तो मेरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है, और इसमें एक एडिशनल फोर्स और लगाया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से भी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा, तो हो सकता है वो एक इटरेशन मिले आपको फाइनल जब आप एग्जाम देने जाएं। तो मतलब बेसिकली वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में चेंज पूछ रहे हैं, और चेंज कहाँ से हो रहा है? चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ओके, तो आई होप जो मैंने आज बताया है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत डैम इजी है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, इसमें तीन चार ही कॉन्सेप्ट है, एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और ये एक्स रेस वगैरह का। ठीक है, अगर ये तीन चार कॉन्सेप्ट आपको आते हैं देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो और बहुत सारी पीवाईक्यूज है इसमें, ये प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज इसमें अगर आप पीवाईक्यूज में अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे देन ऑल्सो यू आर डन। ठीक है, सो आई होप you understood the session, and now let's end this. Thank you.